جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، جب سوویت یونین کا اتحاد ختم ہوا تو اس اتحاد کے ختم ہونے کی ایک وجہ تاجکستان سے افغانستان میں حملہ کرنا تھا۔ چونکہ تاجکستان اس وقت روسی اتحاد کا حصہ تھا اور تاجکستان کی جنوبی سمت سے پاکستان کی دوری صرف 16 کلومیٹر تھی اور آج بھی 16 کلومیٹر ہی ہے، یعنی روسیوں کی نظریں افغانستان پر نہیں بلکہ گرم پانیوں یعنی پاکستان کی بندرگاہوں پر تھی۔ پھر روس کے ساتھ جو ہوا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا۔ روسی اتحاد کے بڑے بڑے پہلو اس سے الگ ہوئے اور کئی نئے ممالک وجود میں آئے۔ ان نئے بننے والے ممالک میں سے ایک تاجکستان بھی تھا۔ وسط ایشیا میں خشکی سے گھرا ہوا یہ ملک، جس کی سرحدیں مشرق میں چین، مغرب میں ازبیکستان، شمال میں کرغزستان اور جنوب میں افغانستان سے ملتی ہیں، دراصل ایک زمین بند ملک ہے، یعنی اس ملک کے کسی بھی اطراف سے اس کو سمندر نہیں لگتا۔ یہ تاجک لوگوں کا ملک ہے، تبھی تو اس ملک کو تاجکستان یعنی تاجک لوگوں کے رہنے کی جگہ کا نام دیا گیا ہے۔ تاجکستان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ سیر و سیاحت اور معلومات پر مبنی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ سرزمین جہاں آج کا تاجکستان آباد ہے 4000 قبل مسیح سے مستقل آباد ہے۔ یہ علاقہ مختلف ادوار میں مختلف سلطنتوں کے زیر نگیں رہا۔ قبل مسیح میں یہ علاقہ باختر کی سلطنت کا حصہ تھا۔ آخری ادوار میں اس کے کچھ حصے پر سکندر اعظم نے اپنی فتح و کامرانی کا پرچم لہرا دیا، لیکن بہت جلد یہ علاقہ مقامی قبائل کے کنٹرول میں چلا گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں کوئی بھی طاقت اسلامی سلطنت کا یہاں رستہ نہ روک سکی۔ عباسی دور کے اواخر میں سلطنت اسلامیہ کے مختلف حصوں پر نئی ریاستیں وجود میں آ رہی تھیں، تو اولین ریاستوں میں یہاں قائم ہونے والی ایک ریاست سامانی سلطنت بھی تھی، جس نے سمرقند اور بخارا کے شہر بنائے، جو بعد میں تاجکوں کے ثقافتی مرکز بنے۔ بعد ازاں کچھ عرصہ یہاں منگولوں نے بھی عارضی قبضہ کیا۔ سلطنت روس کا حصہ بننے سے پہلے یہ علاقہ کافی عرصہ سلطنت بخارا کا حصہ بھی بنا رہا۔ 19ویں صدی میں روسی سلطنت نے وسط ایشیا میں اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے اور تاجکستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد وسط ایشیا میں روسیوں کے خلاف مسلمانوں کی ایک تحریک چلی۔ اس تحریک یعنی بسماچی تحریک نے ریڈ آرمی کے خلاف زبردست مزاحمت کی، لیکن روسیوں کی طرف سے اس تحریک کو بالکل کچل دیا گیا اور یہ علاقہ روسی اتحاد کا حصہ بن گیا۔ اشتراکی دور میں یہاں مذہب خاص کر اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، مسجدوں اور مدارس کو بند کر دیا گیا۔ روسی اتحاد کے بعد روس نے وسط ایشیا کی ان ریاستوں میں سب سے کم توجہ تاجکستان پر دی۔ یہ علاقہ طرز زندگی، تعلیم، صحت اور صنعت میں دوسرے سبھی ممالک سے پیچھے رہ گیا۔ 1990 میں جب روسی اتحاد زوال کا شکار ہوا تو تاجکستان نے بھی دوسرے ممالک کی طرح اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور ترکی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے تاجکستان کی آزادی کو تسلیم کیا تھا۔ 26 دسمبر 1991 تک دنیا کے بیشتر ممالک تاجکستان کی آزادی کو تسلیم کر چکے تھے۔ 2 مارچ 1992 کو اقوام متحدہ نے بھی اس ملک کی آزادی کو تسلیم کر لیا، لیکن اس عرصے کے دوران یعنی صرف 1.5 سال کے عرصے کے دوران اس ملک نے تاریخ کی وہ خانہ جنگی دیکھی جو نہ تو پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی شاید دوبارہ کبھی دیکھے۔ خانہ جنگی کے اس دور میں مختلف قبائل آمنے سامنے ہوئے۔ غیر مسلم آبادی جو زیادہ تر روسیوں اور یہودیوں پر مشتمل تھی ملک سے ہجرت کر گئی۔ 1992 میں انتخابات ہوئے تو امام علی رحمان برسر اقتدار آئے، جو اب تک ملک کے حکمران ہیں۔ 1999 میں دوبارہ انتخابات ہوئے تو اس بار بھی جیت امام کا مقدر بنی۔ چاروں اطراف سے خشکی سے گھرا ہوا یہ ملک وسط ایشیا کا رقبے کے حوالے سے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ملک کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ ملک کا کل رقبہ 1,43,100 مربع کلومیٹر ہے۔ اپنے رقبے کے حوالے سے اس ملک کا پوری دنیا میں 94ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ ملک کی کل آبادی 89,30,000 افراد ہے۔ آبادی کے حوالے سے ملک کا شمار دنیا کے 96 نمبر پر آنے والے ملک کے طور پر کیا جاتا ہے۔
+992 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .tj इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। यह मुल्क पाकिस्तान के शुमाल में वाखान कॉरिडोर से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान टाइम का कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ममालिक 2008 से बाकायदा अपनी तिजारत को फ़रोग दे रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जब तक अफगानिस्तान का मसला हल तलब पड़ा है, ये अपनी तिजारत को रूज पर नहीं लेकर जा सकते। इसी रास्ते से ताजिकिस्तान पाकिस्तान और ईरान को सस्ती बिजली देने का वादा करता है, तो पाकिस्तान भी इसी रास्ते से बजरिया ट्रेन वस्त एशियाई ममालिक में अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का अज़म लिए फिरता है और दोनों ममालिक अब बहुत जल्द अफगानिस्तान के मसले को हल होता देख भी रहे हैं और आपसी ताल्लुकात को बेहतर होते भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में कमोबेश 12 लाख ताजिक आबाद हैं। ये ताजिक ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद होने वाली खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए थे। कुछ तो मुल्क के हालात के बाइस यहाँ चले आए थे, इनमें से कुछ तो हालात सही होने के बाद वापस चले गए, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जिनमें चित्राल और गिलगित का इलाका है वहीं बस गए। रूसी इत्तेहाद से आज़ादी के बाद कुछ अरसा तो इस मुल्क में रूसी रूबल का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद अज़ां ताजिकिस्तानी रूबल मुतारफ करवा दिए गए। लेकिन अक्टूबर 2000 ईस्वी में रूबल को ख़त्म करते हुए मुल्की करेंसी को सोमोनी का नाम दिया गया। ये नाम ताजिक कौम के बाब इस्माइल सामानी के नाम पर करेंसी को दिया गया था, जो 10वीं सदी में ताजिकिस्तान के हुक्मरान गुजर चुके थे। आज ताजिकिस्तान का 1 सोमोनी 17 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 7.30 इंडियन रुपयों के बराबर है। 5वीं सदी कबले मसीह में आबाद होने वाला दुशंबे नामी शहर आज ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। 124 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर आज 7,80,000 लोगों का मस्कन बना हुआ है। दुशंबे के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर खुजंद है, जहां कमोबेश 2 लाख अफराद रहाइश पजीर हैं। फारसी जुबान की एक किस्म ताजिक जुबान आज ताजिकिस्तान की सरकारी जुबान होने का एजाज रखती है। आम बोलचाल और कारोबार के लिए आज भी रूसी जुबान का इस्तेमाल होता है। साल 2009 से पहले सरकारी सतह पर भी रूसी जुबान का बाकायदा इस्तेमाल होता था, लेकिन साल 2009 के बाद ये इख्तियारात ताजिक जुबान के पास चले गए। ताजिकिस्तान अपने दूसरे हमसाया ममालिक से मुईशत में काफ़ी पीछे है और मुल्क में गुर्बत भी ज़्यादा है, मगर इन सब के बावजूद ताजिकिस्तान में तालीम की शरह 99% है। तालीम की तरफ अवाम के इस लगाव के पीछे सोवियत दौर में फ्री और आला तालीम का वो निज़ाम आज भी कार फरमा है, जिसे रूसियों ने यहाँ अपने आखिरी दौर में मुतारफ करवाया था। सेहत के हवाले से इस मुल्क में अभी बहुत नए इकदामात करने की ज़रूरत है। इंसानों की औसतन उम्र यहाँ 68 साल के करीब है। सुन्नी मुस्लिम इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आबाद हैं। मुस्लिम आबादी के 97% लोग मुसलमान हैं। 1.5% मसीही आबादी भी यहाँ आबाद है और बाकी 1.5% में आपको दूसरे कई मज़ाहब से जुड़े लोग नजर आएंगे। कुश्ती की एक किस्म कुश्तीगीरी इस मुल्क की कौमी खेल है। मुल्क की दूसरी सबसे मकबूल खेल बुज़कशी है। इस खेल को खेलने का अंदाज पोलो की तरह होता है, लेकिन इसमें बाल की जगह एक मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क की तीसरी सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने 4 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। रग्बी यूनियन भी अब इस मुल्क में मकबूल होता एक खेल बन रहा है। 2012 से बाकायदा मुल्क की क्रिकेट टीम भी और एक अदारा भी कायम है, लेकिन क्रिकेट के दीवाने यहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस मुल्क में कुल 26 एयरपोर्ट्स हैं। दुशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रशिया से आने वाली कुछ फ़्लाइट्स खुजंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी करती हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन सोमोन एयर है, जो कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई के लिए अपनी उड़ान भरती है। मुल्क में कुल 680 किलोमीटर रेल का जाल बिछाया गया है, जो कि ताजिकिस्तान को रशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान जैसे ममालिक से जोड़ता है। मुल्क में 28,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। अलबत्ता छोटे छोटे देहात को जाने वाली बहुत सारी सड़कें
आज भी पुख्ता नहीं की गई हैं। ताजिकिस्तान को अगर दरियाओं का मुल्क कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में दरियाओं की बहुतात है। 10 किलोमीटर से लंबे दरियाओं की तादाद 900 से ज्यादा है और 10 किलोमीटर से कम दरियाओं को गिनती में शुमार ही नहीं किया गया है। 528 किलोमीटर लंबा दरिया बरतांग इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है और 524 किलोमीटर लंबाई का हामिल वक्श दरिया दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। मुल्क का 2% रकबा कुदरती झीलों ने अपने घेरे में ले रखा है। मुल्क में मौजूद झीलों की तादाद 20 के करीब है। ताजिकिस्तान की सबसे ज्यादा बिजली इन्हीं दरियाओं पर बांध कर बनाई जाती है और यही बिजली ताजिकिस्तान पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में बेचने का इरादा रखता है। मुल्क का 72% रकबा बिल्कुल भी ज़राअत के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ होने की वजह से काबिल काश्त रकबा बहुत ही कम है। ताजिक लोग ज्यादातर रूस में जाकर कामकाज करते हैं और अपने घरों में पैसे भेजते हैं। मुल्क में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कपास की फसल और एल्यूमीनियम की पैदावार है। सब्जियों फलों की काश्त भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। ताजिकिस्तान अपनी खुराक की जरूरत का तकरीबन 50% हिस्सा आज भी इंपोर्ट करता है। मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को हुकूमत ने ठेके भी दे रखे हैं, मगर एल्यूमीनियम की सनत हुकूमत की अपनी तहवील में है। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम का प्लांट भी इसी मुल्क में कायम है। आज ताजिकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो रहा है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और इस तरक्की में एक बड़ा किरदार सियाहत के शोबे का भी है। साल 2018 में 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस मुल्क में सैर के लिए गए थे और हुकूमत इस शोबे में मजीद तब्दीलियां भी कर रही है। पाकिस्तानियों और भारतीयों को इस मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत तो होती है, लेकिन अब यह सहूलत दस्तयाब है कि घर बैठे इस मुल्क का ई वीजा अप्लाई करते हुए आप इस मुल्क का वीजा सिर्फ $50 में हासिल कर सकते हैं। इलम ट्री इस मुल्क का कौमी दरख्त है। आप इस दरख्त की इलामत को ताजिकिस्तान के कौमी परचम के दरमियान में भी देख सकते हैं। आइरस का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। बाज इस मुल्क का कौमी परिंदा है। हिरनों की एक किस्म गिजाल इस मुल्क का कौमी जानवर है। ताजिकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो मुल्क की 50% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में लगा फ्लैग दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा फ्री स्टैंड फ्लैग है। ताजिकिस्तान में 2 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं। दुनिया का अजीम तजारती रास्ता जिसे सिल्क रूट यानी शाहराए रेशम कहा जाता है, इसी मुल्क से गुजरकर दुनिया को चीन से मिलाता है। ताजिकिस्तान की 99% बिजली की जरूरत को हाइड्रो पावर सिस्टम से पूरा किया जाता है। ताजिकिस्तान में बना नोरेक डैम दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा डैम है। ताजिकिस्तान के सदर के बेटे की साल 2007 में शादी हुई, जिसमें सदर इमाम अली रहमान ने गाना भी गाया और डांस भी किया। किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी। हुकूमत की तरफ से यूट्यूब को मुतलका वीडियो हटाने की दरखास्त की गई। अमल ना करने की सूरत में यूट्यूब को ताजिकिस्तान में बैन कर दिया गया था, जिसे काफी अरसे बाद दोबारा खोला गया था। ताजिकिस्तान की 32% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ताजिकिस्तान अपने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा उज़्बेकिस्तान से खरीद करता है। ग्रीन टी ताजिकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। ताजिकिस्तान के खाने रूसी, अफगानी और उज़्बेक खानों से मिलते जुलते होते हैं। पुलाव ताजिकिस्तान की नेशनल डिश है। ताजिकिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से ये सरजमीन हमेशा से ज़लज़लों की जद में रही है और ये भी एक हकीकत है कि जितना जानी नुकसान इस मुल्क में कुदरती आफात से हुआ है, इतना कभी किसी जंग से नहीं हुआ। दोस्तों, ये थी ताजिकिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मालूमाती और तफरीही वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क के बारे में होनी चाहिए, अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट हमारे साथ करते रहिए।
آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے. تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.